How much salary do you take? 7 lakh I draw, 7 lakh he draws, and around 5.75 Shruti draws. Every year? These are fixed salary. Fixed monthly salary. You got 2 million views on that video, which goes air. So the point is that before Shark Tank in terms of branding and after Shark Tank in terms of branding, how is that? नशर माइल्स IPO करेगा आपके साथ? Of course करेगा, करना चाहिए. आप लोग अगर Instagram ओपन करके सब जगह हो गया तो one thing like अगर आप देखोगे तो इतने memes भी बने उस चीज पे. काफी चीज बनी that salary. So hey guys, today we are here in Nashar Miles. आप सब ने उन्हें देखा ही होगा शार्क टैंक में एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ रियली गुड एपिसोड. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स. हम एक नया पैटर्न शुरू कर रहे हैं जहाँ पर मैं जाऊँगा और ऑफिस में उन सबसे मिलूंगा. आज हम आए हैं और आज अब सब पता करते हैं कि एक्चुअली अर्निंग से लेके हाउ दे आर मेकिंग मनी टू हाउ यू कैन फिगर आउट द कोड इन दैट देयर इंडस्ट्री. सब पूछते हैं और फिगर आउट करते हैं. अभी फिलहाल तो अभिषेक हमारे लिए गेट ओपन करेंगे. मैंने उन्हें कॉल किया था. Hi Abhishek, how are you? Good, come in. Meet our people. Hi. Just come in. That's lovely. Yes, today we are with Abhishek and we are sitting in his office. हमने just office का एक छोटा tour लिया. हम definitely और भी tour लेंगे. But Abhishek, my first question to you is like, how is your journey of starting Nashar Miles and on an individual level? How you started in terms of everything in your career? I graduated from Somaya Engineering. Oh, I am from Somaya as well. Oh, We all are nice. from Somaya. Okay. Yeah, did from Somaya. I did my masters from Arizona State in the US. Worked there for a few years. Moved back to India in 2003. Have been doing back office work here for medical billing and other business opportunities came by during that period for 10 years between 2003 and 2013. So we have Lokesh with us. So Lokesh, मतलब आपसे बहुत टाइम से बात करना था. Like जब से आपका एपिसोड देखा है, मैंने सेम एपिसोड टू बी ऑनेस्ट कम से कम 2-3 बार देखा था. 2 बार मेरे मेट्स के साथ और एक बार हम तीनों पूरे टाइम एक ही चीज बात कर रहे थे. योर कॉन्फिडेंस ऑफ पिचिंग, क्लैरिटी, दैट्स द बेस्ट. लाइक आपने जो क्लैरिटी था. बट उस पे आने के पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू लाइक व्हाट इज योर जर्नी इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम कॉलेज टू बिल्डिंग इट टिल हियर. So I did my engineering from Calcutta, and post I shifted from Calcutta to Mumbai. And Mumbai is where I did my MBA from SP Jain. SP Jain के बाद मैंने अपने पूरा लाइफ से सेल्स किया है और मैं कुछ नहीं किया हूँ. So joined Philips as a management trainee and Philips में अलग अलग functions में मैंने काम किया है. So hardcore going to store to store, लट्टू बल्ब्स बेचा हूँ, ईयरफोन्स बेचा हूँ, हेडफोन्स बेचा हूँ. फ्रॉम गोइंग किराना स्टोर. सो इन अप कंट्री ऑफ नॉर्थ एरियाज, आंध्र प्रदेश के रूरल बेल्ट में. सो दैट इज़ वेयर आई गॉट माई बेस ऑफ सेल्स. इन माई सेकेंड स्टेंट मैंने मॉडर्न ट्रेड भी किया है और लास्ट स्टेंट में मैं ऑनलाइन किया. Yeah, so right now we are with Shruti now, who is also founder of Nashar Miles. And Shruti, आपका जर्नी कैसा रहा है लाइक अभी तक फ्रॉम लाइक योर अर्ली डेज, कॉलेज डेज से building company like Nashar Miles? So my name is Shruti. I am born and brought up in Bombay. I first did my BMS from HR College in Mumbai. Okay. And post that I did a year of equity research at Edelweiss. 2007 to 2009 is when I did my MBA from SP Jain Mumbai. Oh. And after graduating in 2009, I did a bunch of marketing roles across organizations. So my first role was with Prime Focus, where I was in a B2B sales and marketing role. Post that in 2011, I moved to ICICI Bank, where I was part of the credit cards product team. So I looked after marketing, communication. I handled their super premium credit card. I also looked after rewards and alliances there. 2014 is when We came together and we started our own business. Lokesh is my younger brother and Shruti is his wife. So we all got together in 2014. Honestly, everything is a building block for what everything adds to the experience when you start your own company. In the current capacity also I head the company, but I generally look at purchasing and sales. Anything which is related to data is my KPI in the company. कुछ भी data related कुछ भी होता है. So my journey is I love maths, I love data. तो जो भी data related होगा, जो भी business related होगा,
and I'm a sales guy. So that's how my journey is. I love sales. Where we became online retailers. Okay. तो पहले उस टाइम जैसे आपने देखा कि Amazon, Flipkart उस टाइम नया नया चालू ही हुआ था ऑनलाइन स्पेस में. तो हमने क्या किया, उस टाइम हम ऑनलाइन रिटेलर्स थे, ट्रेडर्स बोल सकते हो, रिटेलर्स बोल सकते हो, तो वैसे चालू किया. तब हम 10 से 15 कैटेगरी में काम करते थे 100+ ब्रांड्स के साथ. Wow. Over time we realized that this is something which is not scalable in a big way, especially when Cloudtail and Appareo and all players had come in. तब हमने देखा कि बहुत कैटेगरीज है जहाँ पे हम लगेज भी करते थे. VIP, Caprese, Samsonite, सब ट्रेडिंग हम करते थे, ऑनलाइन रिटेल में करते थे. Amazon, Flipkart उस टाइम पे, और 2-3 शॉप क्लूज जैसे बहुत साइट्स थे. फाइनली वी वेंट थ्रू नंबर ऑफ कैटेगरीज एंड डिसाइडेड दैट लगेज स्पेस इज अ ग्रेट कैटेगरी. एक तो उसमें ब्रांडेड प्लेयर्स कम थे, ये 2017 की बात कर रहा हूँ. ब्रांडेड प्लेयर्स बहुत कम है, मार्केट साइज ऑफ ब्रांडेड प्लेयर्स कम है. ऑनलाइन स्पेस पे लगेज बहुत ही कम बिकता था उस टाइम, और जो था भी वो बहुत ही स्टैंडर्ड था. ब्लू, ब्लैक, ग्रे ऐसे ही कलर्स होते थे. हार्ड लगेज इतना नहीं होता था, सॉफ्ट होते थे जनरली. तो ये सब देखते हुए हमने बोला लगेज एक बहुत अच्छा कैटेगरी है जिसमें एक स्पेस है, क्योंकि हमें ऑनलाइन आता था. तो हमने अपना पूरा ऑनलाइन जर्नी क्योंकि स्टार्ट की थी Amazon, Flipkart से. हमें ऑनलाइन का लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, रिकन्सिलिएशन ये सब पता था, रिटर्न्स हैंडलिंग, रिटर्न्स मैनेजमेंट. तो उसके साथ में फिर हमने देखा कि लगेज कैटेगरी जिसमें प्लेयर्स कम हैं, वैरायटी कम है, ऑनलाइन पे भी और भी कम है, तो इट्स अ ग्रेट कैटेगरी टू बी इन. प्लस सो मेनी अदर मैक्रो फैक्टर्स. लोग ट्रैवल ज़्यादा करते थे, जो पहले साल में 2 बार करते थे, साल में 1 बार करते थे, आजकल साल में 4 बार करते हैं. शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल, रोड ट्रैवल भरने लग गया था. सो लगेज एज अ कैटेगरी वाज ग्रोइंग, इज ग्रोइंग. तो वो देखते हुए हम इस कैटेगरी में so that has been our capsule of how Nasher Miles was started. So Abhishek, so specifically I love the way, because see हम भी इंजीनियर्स ही है, हमने भी इंजीनियरिंग करके ही आगे बढ़े. आपको ऐसा नहीं लगता लाइक कि इंजीनियर्स आर द काइंड ऑफ अ पीपल लाइक जो इंजीनियरिंग के बाद अगर बिजनेस करते हैं तो लाइक ऐसा, बिकॉज आपने जो इंजीनियरिंग की वहाँ से तो आपने डेफिनेटली ये चीज़ नहीं सीखी होगी. सो लाइक ये आपने कहाँ सीखी एज अ फाउंडर, बिकॉज मार्केट डेफिनेटली काफ़ी ओपन था आप जैसे कह रहे थे, बट स्टिल इट्स pretty that kind of a thing to learn. इंजीनियरिंग क्या सिखाता है? Mainly just teaches you to be analytical, और स्पेशली जो 90s में किया था इंजीनियरिंग जिन्होंने, आप देखो कोई भी फील्ड में हो, मोस्टली सब टेक्नोलॉजी साइड पे गए. दैट सेड, even I pivoted from my engineering to MIS, फिर वहाँ से related टेक्नोलॉजी रहा है. I guess you keep learning over time. आप भले कोई भी क्या हो, इंजीनियरिंग किया हो, मेडिकल किया हो, एक बार आप घुस जाओगे बिजनेस में, यू कीप लर्निंग ओवर टाइम, एंड यू ऑलवेज हैव. अब आइसोलेशन में तो करते नहीं हो, आप किसी के साथ करोगे, आपके टीममेट्स रहेंगे, को फाउंडर्स रहेंगे, पार्टनर्स रहेंगे, तो सीख जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स, एंड यू ऑलवेज सीक आउट एडवाइस, राइट? यू टॉक टू पीपल, यू सीक एडवाइस, and that's how you learn. Yes, so specifically talking about engineers, I feel like मैंने भी जो मेरे इंजीनियरिंग करियर में सीखा है, लाइक हम एक चीज़ बहुत अच्छा करते हैं, जुगाड़. Yes. वो एक चीज़ लाइक हमारे में एवरी टाइम होता है. एंड आई फील एनी बिग कंपनी इन इंडिया जो बहुत बड़ी हो जाती है विद द टाइम एज द वे यू हैव स्केल्ड, हम लोग ऐसे इनकम सोर्सेज अपनी कंपनीज के लिए बनाए हैं. आपने भी, बिकॉज आपने, मैंने शार्क टैंक में देखा, आपके लिए क्लैरिटी बहुत ज़्यादा थी इन टर्म्स ऑफ. सो इफ़ यू कैन स्पीक अबाउट लाइक कि कौन से लाइक सेक्टर्स से या कौन से जगहों से नशर माइल्स जो है वो पर्टिकुलरली मनी अर्न करता है. यू मीन सेल्स हमारे काम? या हम आपके सेल्स कैसे होते हैं? क्योंकि हम एक मिड प्रीमियम ब्रांड लगेज स्पेस में हैं और हम ऑनलाइन में हैं, तो हमारा जो टीजी है वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टीजी है ऑफ अ सर्टेन एज ग्रुप हु आर लॉट ऑफ लाइक ऑनलाइन कस्टमर्स, and these are urban customers. So Mumbai MMR region is our biggest जहाँ से हमारा revenue आता है, sales आता है. Then of course the Bangalore belt, and उसके बाद आपका NCR. Then of course other pockets like south काफ़ी आता है. Then east में a portion in Calcutta. So these are the places we are there for. But of course now we are gearing up. We are going in a big way, hitting the tier 2, 3 also. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्केल. बस अब हम ये साल जो हमारा है पूरा अब स्केल का रहेगा टू रीच एज मेनी प्लेसेस एज पॉसिबल. ऑफ कोर्स आज भी पहुंचता है सब जगह,
ऑलरेडी हमारे वेयर हाउसेज क्या ऑल 4 कॉर्नर्स में आज है, मुंबई है, बेंगलोर है, कोलकाता है, NCR है। सो हमारे सारे कस्टमर्स को कुछ दिनों में पहुंच जाता है। अब हम और नॉर्थ ईस्ट भी वेयर हाउस एयर डिपो खोलेंगे, वैसे ही सेंट्रल इंडिया में भी करेंगे एंड ऑन दी वेस्टर्न साइड ऑल्सो, ताकि कस्टमर्स को जो 3 से 4 दिन में मिलता है वो 2 दिन में मिलने लग जाए। सो या स्पेसिफिकली द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक, जब हम लोग सेल्स का डिस्कशन करते हैं तो लाइक कंपनी सिर्फ बैग सेल करके ही पैसा कमाता है, या आप लोग लाइक और भी डिफरेंट सेक्टर्स या और भी दूसरी जगह भी नशर माइल्स जो है वो फैला हुआ है, या अभी राइट नाउ इट्स ओनली एंड ओनली कि सेल सिर्फ बैग से ही आता है? Nasher Miles is only in luggage and backpacks and accessories. ओके, मुझे बात कर रहे हैं या तो हमारा सेल्स ये लगेज से ही है एंड बैकपैक्स एंड एक्सेसरीज। इनफैक्ट बैकपैक्स आज की तारीख में हमारा बहुत कम है सेल्स, वो भी ये साल हम बैकपैक्स इन अ बिग वे जो रेंजेस लॉन्च करने वाले हैं, और वो जो TG जो अभी तक हमने इतना छुआ नहीं था, द स्कूल कॉलेज कैटेगरी, उस पर अब फोकस करने वाले हैं। लाइक मैंने आपको शार्क टैंक एपिसोड देखा और मैंने एक चीज़ देखी कि आप जो बैग का चार्ज 2000, 2500 या 3000 में करते हो, वो आई थिंक 10,000 के ऊपर बिकता है मार्केट, मतलब जो लोग बेच रहे हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स बेच रहे हैं। सो इट्स लाइक वो मैन्युफैक्चर करना, और मैंने देखा कि अनुपम ने वो बैग का क्वालिटी भी चेक किया, इट वाज रियली गुड। तो लाइक प्रीमियम सेगमेंट के बैग्स आप लोग अफोर्डेबल रेट्स में कैसे क्रैक कर लेते हो? ऑफ कोर्स देखिए, कुछ जो प्रीमियम होता है, जो बड़े ब्रांड्स हैं, उनका तो आप देखोगे तो मेनली उनका ब्रांड का पैसा लेते हैं, मार्केटिंग पे जो खर्चा करते हैं वो लेते हैं। सो उसके लिए वो चार्ज करते हैं और लोग उनके कस्टमर्स भी हैं, विच इज़ गुड। सो वी आर ऑल्सो होपिंग कि जैसे अब हमारा भी ब्रांड एस्टैब्लिश हो गया है और एस्टैब्लिश हो रहा है, तो लोग भी हमारे पास आएंगे और हमारे प्रोडक्ट्स लेंगे, और लेते भी हैं, आज भी लेते हैं। इवन दो मार्केट में हमसे कम प्राइस पॉइंट्स वाले बैग्स आते हैं, people still value it and they pay us a certain premium for our brand, and you know that is the validation that our products are So like आपको क्वालिटी पे क्या होगा, like वो how do you maintain quality with the price, like is it hard or it's like कि नहीं मेंटेन हो पाता है, या आपको काफ़ी चैलेंज किया था मेंटेन? आप ये चीज़ ऐसा है, कोई भी प्रोडक्ट में जितना पैसा दोगे उतना आपको क्वालिटी मिलेगा। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑफ कोर्स वी इंश्योर दैट हम बर्न नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉफिटेबल रहे हैं हर समय, और हम कंटिन्यूसली रहेंगे प्रॉफिटेबल, दैट इज़ द एम। सो दीज आर द एक्चुअल प्राइस पॉइंट्स। अब क्या होता है, बिकॉज वी आर अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, वी आर टाइटली रन, फाउंडर रन, तो हमारे ओवरहेड्स कम हैं। अब जैसे जैसे बड़ा होगा कंपनी, ऑफ कोर्स उसमें स्केल भी आएगा, तो और दाम कम होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस में इंक्रीज, ब्रांडिंग एक्सपेंसेस में इंक्रीज, बट आवर एम इज टू स्टिक टू दिस प्राइस पॉइंट, this price bracket, you know, barring a 5-10% here or there, stick to this price bracket so we can get you know, affordable mass premium goods to the aspirational customer. So can you tell us more about your first sales, like how did you guys did your first sale? तो वो कुछ स्टोरी अगर आपके पास होगा कि ये हमारा स्टोरी है फर्स्ट सेल का। एक्चुअल डेट पूछोगे तो हमारा जो फर्स्ट सेल था ये हुआ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2017 में। और फर्स्ट बैच जो इंपोर्ट करवाया हमने वो आया हमें अगस्त लास्ट वीक में। ऑनलाइन में हमने उसको लिस्टिंग किए, फोटोग्राफी की, वो तो पहले ही हो गया था, उसका सब डिटेलिंग किया, उसका जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डाला, और उसके बाद हम इसे ऑनलाइन सेल किए। तो ये सितंबर 2017 में हुआ हमारा फर्स्ट सेल। और लाइक कैसे हुआ, मतलब आप लोगों ने लाइक शुरू करने के कितने टाइम बाद हो गया था फर्स्ट सेल? डे वन से हम ऑलरेडी जानते थे, राइट, हम ऑलरेडी ऑनलाइन रीसेलर्स रह चुके हैं, तो हमें बेचना तो आता ही था। हमने ऑलरेडी 1000+ मतलब 100+ ब्रांड के प्रोडक्ट्स बेचे, इंक्लूडिंग लगेज। तो हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट, हाउ टू सेल, व्हाट प्राइस पॉइंट पे बिकेगा, वो तो हमें पता ही था। नाउ इज जस्ट अ क्वेश्चन, अब ये ब्रांड हमारा है तो हमने उसको सेल किया। वहाँ में हमने परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी किया, अमेजोन पे मार्केटिंग किया, फ्लिपकार्ट पे मार्केटिंग किया, उससे फिर सेल आता है। तो फर्स्ट सेल अमेजोन से आया था, लाइक फर्स्ट सेल अमेजोन से आया था, यस। सो लाइक अभिषेक, जब कंपनी में 100 करोड़ जितना, या जब जो आप अभी एम कर रहे हो, या लेट्स से 50 करोड़ जितना जब अमाउंट कंपनी एज अ रेवेन्यू बनाता है, तो नशर माइल्स से जब ये रेवेन्यू टारगेट्स हिट करते हो,
सो लाइक वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, लाइक आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो कंपनी में, लाइक मार्केटिंग में, देन एम्प्लॉइज पे, तो लाइक वो डिस्ट्रीब्यूशन कैन यू शेयर? हमारा क्या है, जो कॉस्टिंग है, वी वर्क इसमें बहुत सिंपल होता है. आपका परचेस प्राइस होता है, कॉस्ट ऑफ गुड, उसके बाद आपके एक्सपेंसेस होते हैं. तो फर्स्ट लेवल एक्सपेंस आता है आपके इंपोर्ट कॉस्ट, ओके. फिर उसके बाद आता है आपका जो इंपोर्ट CHA कॉस्ट होता है. उसके बाद आपके एक्सपेंसेस आते हैं इन टर्म्स ऑफ वेयर हाउसिंग कॉस्ट. ये हमारा मेजर पोर्शन होता है हमारे फील्ड में, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, बिकॉज है ये पूरा हमारा स्टोर्स तो है नहीं, पूरा ई-कॉमर्स बेस है. वेयर हाउसिंग कॉस्ट इज़ अ मेजर पोर्शन. फिर हमने लास्ट ईयर तक हमारा जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग था वो 13% था और ब्रांडिंग 1.5% था. लेकिन अब हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग में थोड़ा बढ़ा रहे हैं और ब्रांडिंग भी 1.5% से हम 9% पे लेके गए हैं. ऐसे हम एलोकेट कर रहे हैं. अब इसके बाद आता है आपका बाकी कॉस्ट. आफ्टर द कॉस्ट के बाद में वेयर हाउसिंग कॉस्ट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कॉस्ट, ब्रांडिंग कॉस्ट, फिर आपके ओवरहेड्स एंड अदर कॉस्ट लाइक फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है और एम्प्लॉय कॉस्ट. सो अगर आप मेन ब्रैकेट देखोगे तो वेयर हाउसिंग एंड अदर कॉस्ट इज एट 12%, परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज एट अराउंड 12-13%, और ये साल अब हमारा ब्रांडिंग कॉस्ट अराउंड 9-10% रहने वाला है. शार्क टैंक में आने के बाद अब आपका मार्केटिंग कॉस्ट और ब्रांडिंग कॉस्ट आप हैवी करोगे बिकॉज आपकी ब्रांडिंग हो गई है जी. तो लाइक आप उस ब्रांडिंग को अगर लाइक ब्रांडिंग हो जाने के बाद आप उसे और लेवरेज करने का प्लान कर रहे हो कि नहीं अब वो बन गई है तो लाइक उसी को वैसे ही रखकर लाइक यू विल गो टूवर्ड्स हेवी स्पेंडिंग ऑन क्वालिटी एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग according to you? We are going to be doing all. Shark Tank ने हमको अच्छा बूस्ट दिया है, no doubt. It's an amazing boost. We have seen a great spike in sales. लेकिन उसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है. उसमें जो ब्रांड बिल्डिंग का ये फर्स्ट स्टेप है. अभी तो हमें ब्रांड और बड़ा बनाना है ताकि लोग ब्रांड से मांगे, ऑर्गेनिक सर्च हो उससे मांगे. स्टोर्स में हमारे लोग पूछ के आए कि हमें नशा माइल्स का बैग खरीदना है, तो हम अभी इस पे काम कर रहे हैं. हम ब्रांडिंग भी हमने काफ़ी मार्केटिंग एक्सपेंस भी बढ़ाया और हमें उसका रिजल्ट भी आया है. क्योंकि क्यों हमें पता चलता है कि इसमें एक टर्म होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो बोलते हैं. भले हमने मार्केटिंग बहुत बढ़ा दिया लेकिन हमारा रिटर्न ऑन एड स्पेंड फिर भी रहा, तो इसका मतलब है सेल्स भी उतने अच्छे हुए हैं. इसके साथ में हम बाकी चीज़ों पे भी फोकस कर रहे हैं. जैसे हमारा जो क्वालिटी तो हमने मेंटेन करके रखा ही है, लेकिन अब हम स्केल बढ़ा के और कॉस्ट को कम करना चाह रहे हैं. तो विद इंक्रीज इन ब्रांडिंग, विद अ बूस्ट फ्रॉम शार्क टैंक, विद इंक्रीज इन स्केल विच विल ब्रिंग अ कॉस्ट डाउन. I think we are in a good place, to really establish ourselves. I just want to ask because जब आपका शार्क टैंक एपिसोड एयर हुआ, आप कमेंट्स भी रीड करोगे, सब कमेंट से लेके सब जगह यही बात होता है. जब आप बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, बट मुझे कॉन्फिडेंस से ज़्यादा लगता है कि कॉन्फिडेंस इसलिए था बिकॉज यू हैव वेरी क्लैरिटी ऑफ थॉट. मतलब ये चीज़ें कैसे हो सकता है कि लाइक 5 ईयर का आपने लाइक वो नंबर्स भी आपने बहुत परफेक्टली डिफाइन करके रखे. यार ठीक है, डेफिनेटली विद द टाइम दैट विल चेंज, बट लाइक वो जो क्लैरिटी ऑफ थॉट था और सब नंबर्स आपको लाइक पता थे कि देखो इतना हमारा रेवेन्यू था, इतने टाइम में इतना किया है. लाइक वो क्लैरिटी ऑफ थॉट आता कैसे इन टर्म्स ऑफ दैट? अगर मैं आपको पूछूं कि आपको क्लास 12 में कितना मार्क्स आया, बता पाओगे? हाँ बता पाएंगे. करेक्टली राइट. करेक्ट. आपको क्लास 10 में कितना मार्क्स आया था, बता पाओगे? बता पाएंगे. ठीक है, बता पाओगे राइट. हाँ बराबर. अगर मैं आपको बताऊं सचिन तेंदुलकर ने कितना नंबर ऑफ सेंचुरीज की, आप बता पाओगे? शायद हाँ या शायद ना. बता पाओगे. क्रिकेट फॉलो कर तो बता पाओगे. 100 सेंचुरीज में मारा है राइट. रीजन इज बिकॉज यू हैव डन दिस और यू लव द होल थिंग राइट. अब जो बंदे ने अगर कुछ किया है, हम लोग ने खुद ही किया है, दोज नंबर्स तो हमें अपने आप आना ही चाहिए. इफ वी हैव डन इट फ्रॉम स्क्रैच विच इज 0, यू हैव बिल्ट अप द ब्लॉक्स, सो यू वुड नो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट ब्लॉक. एंड अगर हम लोग अभी 5th फ्लोर में और अगर हमें 20वां फ्लोर में जाना है तो आप सिर्फ ब्रिक्स तो नहीं ऐसे लगाते जाओगे. एक स्ट्रेटेजी बनता है, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा. और इफ द गोल इज टू मेक द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, एग्जांपल यू विल बी देयर इज अ ब्लूप्रिंट राइट. इट कैन नॉट हैपन ना कि एक लेबर थोड़ी ले आओ तो आप 20-50 लेबर ले आओ और आप चलो ईटा लगाओ सबसे बड़ा बिल्डिंग बना ले. ऐसा नहीं बनता राइट. देयर इज अ इंजीनियर, देयर इज एन आर्किटेक्चर, देयर इज अ ब्लूप्रिंट एंड इट गोज एज पर द प्लान. So Shark Tank happened. It was one of the,
I would say it is one of the events which has happened in the journey of our overall plan. It was not the first thing or last, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे लिए. Shark Tank happened, it is a part of our journey and we still have a long way to go. तो numbers का लो मतलब of course you will have to know it. मतलब अगर आपका खुद का business और आपको खुद का आपको अच्छा लगता है, if you are passionate about it, you need to know about these things. There is no way you cannot know about it. और इससे confidence आता है ना. हाँ, so true. I feel and your pitch was exactly very perfect. So like Shark Tank से आपको all shark deal मिली, ठीक है. उसके अलावा और क्या लगता है आपको कि like money तो is one of the place, but उसके अलावा what do you think you got from Shark Tank? I think मतलब Shark Tank मतलब at the end of the day it is a TRP show, so you get fame little bit, but fame is short-lived. It is for 1 week, 2 weeks, people move on with their lives and that is what we are also expecting. It is done, that chapter is over. Wow. But the bigger picture is you still need to do continuously what you've been doing for the last 5-6 years. So Shark Tank was one moment which helped us to increase the brand awareness for the brand, okay, more than anything else. Brand को थोड़ा सा popularity मिला, but लोग भूल जाते हैं, ठीक है, कोई याद नहीं रहता है, ठीक है ना. सो नाउ दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट गोइंग फॉरवर्ड. हाउ डू यू स्टे रेलेवेंट, ओके, व्हाट डू यू डू थिंग्स एज अ ब्रांड सो दैट आपको जो स्पाइक मिला 1 हफ्ता 2 हफ्ता वे पीपल टॉक अबाउट इट, आपको कंटिन्यूसली कैसे मिल सकता है. एंड दैट इज द जर्नी वी वांट टू ट्रैवर्स अपॉन. Okay. So जो हो गया खत्म, रात गई बात गई. अब now you move forward and look for new challenges. That's how it is. But yeah, that's how we are looking at it. But yes, the response has been overwhelming. We got much more than what we expected. Okay. I mean, we didn't know. But like I said, we are again going back to our basics, which means work hard, हसल हार्ड. आप अपने राइट चीज़ करो. आज शार्क टैंक का कल कुछ और भी हो सकता है, यू नेवर नो. बट फोकस ऑन योर बेसिक्स. डोंट गेट स्वेड अवे बाय डिविएशंस लाइक शॉर्ट टर्म फेम. वो सब आएंगे जाएंगे, डजंट मैटर. योर बिगर ऑब्जेक्टिव, योर बिगर गोल शुड बी अटेन्ड एंड दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स. लवली. बट एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि जहाँ पर इंडस्ट्री में लाइक आप जिस लेवल पे रेवेन्यू कर रहे थे शुरुआत से, लाइक आपने स्केल करना शुरू किया, ऐसी इंडस्ट्री में विच इज कैपिटल इंटेंसिव, बिल्डिंग इट बूटस्ट्रैप, ये वन ऑफ द चैलेंज है. लाइक हाउ डिड यू टैकल, और आपके लिए कभी ये चैलेंज था ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है. So basically, of course, we have access to capital through our families, friends, जहाँ हम लोग पैसा लेते थे, डेट पे लेते थे. So आप धीरे धीरे ग्रो करोगे and that has been a nature. So we didn't want to take capital just because everybody was taking capital. So that is one rule which we always believe. आप capital तभी लो जब आपको scale up करना है. जब आपको scale up इतना नहीं करना था तो हम लोग capital नहीं दिए, तो अच्छा हुआ ना, किसी अपना cap table undiluted है, 100% is owned between the 3 co-founders as such, right? So you start diluting when you need money to scale up. Till you can reach a level by your own money, you should definitely do it. और मतलब at an ARR of 100 crores at this point of time, हम लोग तो इन्वेस्टर्स को भी यही बोलते हैं कि हमें जो भी गलतियां और जो सीखना था हम लोग अपने पैसे से खुद कर चुके हैं. सो आपका पैसा इज हेल्प टू स्केल अप. ओके, इफ वी हैव टू डू, ऐसा नहीं है कि सब हम लोगों ने गलतियां नहीं की, हमारे मिस्टेक्स रहे, बहुत कुछ हुआ. दैट इज अ पार्ट ऑफ द लर्निंग कर्व. बट व्हेन यू पुट द प्रूफ, आपका पूरा कंसेप्ट हमारा एग्जीक्यूशन में हम लोग ने बहुत थरली धीरे धीरे काम किया है एंड वी हैव मेड अ सॉलिड बिजनेस प्लान. सो यू डोंट रेज मनी बिकॉज एवरीबडी इज रेजिंग, यू रेज मनी व्हेन यू नीड मनी टू स्केल अप द बिजनेस. एंड नाउ इज द टाइम फॉर अस वेयर वी नीड मनी टू स्केल अप द बिजनेस. तो दैट इज हाउ आर थॉट प्रोसेस. और अगर हमें लगे कि अगर ये पैसे से हमें स्केल अप नहीं करना है तो हम लोग नहीं रेज करेंगे, राइट? सो यू डोंट, तो वैल्यूएशन ऑल दिस इज, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट वन ऑफ द थिंग. आपका मेन कम है आप बिजनेस कितना बड़ा करते हो. दैट इज द, मतलब दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर एवरीबॉडी. श्रुति, सो बेसिकली नैशर माइल्स बिल्ड करना एक पॉइंट ऑफ वे में एज अ, मतलब आप तीनों, मैंने देखा कि लाइक यू ऑल 3 आर फैमिली मेंबर्स. Yes. And आप और लोकेश तो like you are you are husband and wife. Can you talk about in terms of family जब एक बिजनेस बनता है तो like कुछ challenges, because कितना hard, मुझे तो काफी ऐसा डिफिकल्ट लगता है कि आप घर भी जा रहे हो तो आप उनके साथ होता है, ऐसे डिस्कशंस घर में भी होते हैं. Like how is that scenario look like, because trust build करना फैमिली में भी, अगर कुछ बिजनेस में ऊपर नीचे होता था क्या फैमिली में, तो वो वर्क और फैमिली, तो ये दोनों चीजें आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? So I feel what the plus is that, see, the trust is already there, right? So you're to find a co-founder, you can work with
must be a really uphill task. For us, it was really easy because three of us come with complementary and very different skill sets. So to be able to work together to build that trust had been easy. Obviously, it's maybe it's not the ideal thing that a husband and wife work together, but thankfully for us, we've been able to make it work. We keep our work in office tends to be fairly siloed, so though we handle complementing functions, but there's not so much of an overlap. So we are both focusing on what we do best. We manage our own teams. So that's the good part. Obviously, we do tend to take work home, but that also makes the conversation exciting. So both good and bad things, I would say, but it works for us, thankfully. नशर माइल्स आईपीओ करेगा आपके हिसाब से? ऑफ कोर्स करेगा, करना चाहिए. मतलब इट इज आईपीओ मतलब बोलना बहुत आसान है, मैं बोल दूं आईपीओ करूंगा. अल्टीमेट गोल फॉर एनी कंपनी हु स्टार्ट्स इन द कंपनी इज do an IPO, okay? But to reach an IPO, you need to scale up. You need to do business. I don't know how will it scale up in 3 साल 5 साल बाद. अगर हम लोग we reach a stage of let's say 500 crores, which is as per the plan, then yes, we will do an IPO. There is no reason why we won't do an IPO. But अभी भी जहाँ अभी है उसको करने में it will take a lot of effort and bandwidth. Yes, but we are focused to achieve that number. अब आईपीओ होता है या किसी को बेच देंगे या फिर और 1000 पे करेंगे, कुछ भी हो सकता है. बट एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट फोकस्ड एंड देयर इज ओनली वन गोल विच वी हैव इज टू ग्रो नशर माइल्स ब्रांड एंड टू मेक ट्रैवल सबका जो होता है ना एलिवेट, हम लोगों ने बोला था एलिवेट द ट्रैवल क्वोशंट एंड दैट इज द जर्नी. सो जैसे मैंने बोला था ना, टर्शरी सेल्स पे फोकस करना है, नंबर्स पे फोकस नहीं करना है. हेंस आवर गोल इज टू वर्क ऑन फैशन, गुड सेल गुड डिजाइंस. सेल्स एंड ऑल माइट हैपन, विल हैपन इफ यू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम एंड दैट इज व्हाट वी बिलीव. आप लोग कहाँ से हिट हुए मैं वो बताता हूँ. आप लोग अगर इंस्टाग्राम ओपन करके सब जगह हो गया तो वन थिंग दैट पीपल लाइक अगर आप देखोगे तो इतने मीम्स भी बने उस चीज पर, काफी चीज बनी दैट सैलरी. बट मुझे लाइक बीइंग अ फाउंडर व्हेन यू टेक दैट अमाउंट ऑफ सैलरी, सो लाइक क्यों लोग इतना हाइप कर देते हैं? और वो आपका क्या उस पर ये है इन टर्म्स ऑफ व्यूज की हम इतना लेते हैं तो इट्स लाइक an achievement or something? मुझे nothing like that. We didn't start with 7 lakh rupees per month salary. It happened organically. जब चालू किया था, so अब let's give context. 15 साल का सेल्स एक्सपीरियंस है, ठीक है ना? ट्राई टू डू अ बेंचमार्क कि अगर कोई बंदा अगर 15 साल का सेल्स एक्सपीरियंस है उसको अभी क्या सैलरी मिलना चाहिए. That is a one metric. You all try to analyze that, but I'm not defending that. When we started, जब मैं अपना जॉब छोड़ा था, फिलिप्स में काम कर रहा था, multinational, very good job. We didn't start with any salary when we started. Okay, it was zero. We were living out of our savings. As the business scaled up, धीरे grow किए. Okay, right now we take a salary what a CEO, CXO or a CMO should deserve. Okay, it is as simple as that. अगर आपको लगता है एवरेज सैलरी से हाई है, दैट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. बट वी फील जो काम और जो वैल्यू एडिशन हम लोग कंपनी के ला रहे हैं, अगर कोई आउटसाइडर लाना होता, दे वुड हैव आल्सो टेकन दैट मच सैलरी. इट इज एज सिंपल एज दैट. एंड मोस्ट ऑफ अस आर लीडिंग सर्टेन फंक्शंस. वी आर अ स्मॉल टीम और हम लोग काफ़ी अंदर तक ग्राउंड लेवल तक हम लोग काम करते हैं विद अ लॉट ऑफ फंक्शंस. ओके, सो आई फील दैट इज जस्टिफाइड. ओके, ऑफ कोर्स देयर विल बी व्यूज. आई मीन हर एक चीज़ का एक व्यूज रहता है, नो प्रॉब्लम. दूसरा इसमें और एक बात बताता हूँ, लाइक अनलाइक a lot of other startups, from day one we were very clear, we don't take out any other thing from the business apart from a salary. So अगर ये प्रॉफिट लेटर से लास्ट ईयर हमारा 6 करोड़ का एबिटा हुआ था, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ने घर पे 6 करोड़ लिया, हमने कुछ नहीं लिया. वो 6 करोड़ वेंट बैक इनटू द बिजनेस. ओके, सो हम लोग ने अपना सैलरी लिया. सो वी आर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी. व्हाई डू वी डू दैट? आज में हम लोग हैं, जैसे जैसे हम लोग ग्रो करेंगे, वी गो टू डिफरेंट फंक्शंस. इफ वी हैव टू गेट समबडी फ्रॉम आउटसाइड इनटू आवर कंपनी हु इज डूइंग अ काइंड ऑफ वर्क व्हाट वी आर डूइंग, दे वुड बी आल्सो एडिक्वेटली पेड एज पर दिस एक्सपीरियंस. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो कंपनी इज बेस्ड, अगर मैं मतलब इट वुड हैव बीन वेरी इजी ना, सैलरी कम ले लो, आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, आपका एबिटा बढ़ जाएगा, बट दैट डजंट वर्क लाइक दैट. व्हाट वुड an average person with that kind of experience draw a salary? I think this is the figure. Okay, so this is the logic. That's lovely. That's lovely. एक क्वेश्चन ये रहेगा, as you lead marketing in the Share Miles, हम कुछ marketing questions आपको पूछते हैं. I belong to the marketing side itself. Sure. So मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अच्छा देखो, Shark Tank के पहले Share Miles को लोग जानते थे, जो लोग उनसे बैग खरीदते थे. अब सब Share Miles को जानते हैं.
You got 2 million views on that video. Yes. Which goes air. So the point is that before Shark Tank in terms of branding and after Shark Tank in terms of branding, how is it as a branding perspective से अगर बात करें? So I feel when you talk about brand communication, maybe this what your brand stands for and what you want the brand language to be probably doesn't change as per the audience size, right? So Nature Miles today, my brand vision is to make the Indian traveler more fashionable through luggage. Now, if 50,000 people knew about my brand or 2 million people know about the brand, the core of my brand doesn't change, right? The mediums I use or the amount of monies I spend to communicate what my brand stands for might change. However, my brand as a personality, as the vision that I hold, that still stands true irrespective of the audience size. Lovely. मेरा ये क्वेश्चन है लाइक इन टर्म्स ऑफ बिकॉज हम अगर ट्रैवलिंग कंपनी है बिकॉज जिस तरीके से आप बिल्ड कर रहे हो सो लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक बिकॉज जब शार्क टैंक आया तो वहाँ से सोशल मीडिया अट्रैक्शन बहुत हेवी हो गया होगा सो लाइक वहाँ से डायरेक्ट वेबसाइट पे ज़्यादा सेल्स इंक्रीज हुए थे लाइक अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ था कि लाइक everywhere like social media like सब जगह एकदम से attraction increase हुआ था if you can talk about that. Sure. So the response to our Shark Tank episode has been phenomenal, honestly. We've had more than a 8x growth in traffic on our own website. The growth in sales is over 12x. Our social media following from 16,000 has reached to about 38,000 currently. Wow. And we do only organic followers. We don't buy followers on Instagram. So that has more than doubled. That's more than 100% growth. Across marketplaces, we sell via Amazon, Flipkart, Myntra, and every marketplace which has luggage. So everywhere the marketing, the sales has increased. On Amazon, if I was to pick that as an example, today, among the top selling suitcases, top 50 selling suitcases, about 8 are Nature Miles currently. Wow. If you see share of voice, Nature Miles is the second most searched luggage brand on Amazon. And we were trending on Google search for a long time. So honestly, it's been phenomenal, the response. Lovely. So I think that's it for you specifically. Yeah. So if you have to tell us like any 3 sales strategies जो आपके लिए बहुत ज़्यादा work की है in terms of for Nature Miles. Yeah. There are 3 main terms which is generally used in the sales field. A good company should be built on tertiary sales and not on primary sales. Wow. And that is something which I learned very very early on and that was one of our main pillars. हम लोग सिर्फ टर्शरी में बात करेंगे. अगर आपका माल टर्शरी मतलब क्या होता है अगर आपका माल एंड यूज़र खरीदता है अगर आपका माल एंड यूज़र खरीदेगा बाकी सब आपके जो चैनल पार्टनर्स है वो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे सो एज अ ब्रांड एज अ कंपनी योर फोकस शुड ऑलवेज बी इन टर्शरी सेल्स अगर आप वो फोकस ले लेते हो बहुत सारी चीज़ जो आते हैं एवरीथिंग गेट्स सोल्ड You would have heard in a lot of companies there's something called month end, quarter end. हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा concept नहीं है कुछ भी month end नहीं है कुछ भी quarter end it doesn't work like that because it is an everyday business. अगर आपका माल end user खरीद रहा है तो आपका month end daily चलेगा आपका quarterly चलता रहेगा. So that is the whole one of our basic strategies which we adopted since early on and it has helped us. Thank you so much. Thank you. I just love talking to all of you and the kind of clarity of thought you have. Thank you so much. Thank you so much for doing this. Thank you. I loved it. I really loved it. एपिसोड रिकॉर्ड करने के बाद अभिषेक ने बहुत अच्छा गाइडेंस भी दिया मुझे और मेरी टीम को कि हाउ वी कैन ग्रो अहेड एंड ऑल्सो मैंने काफी मेरे बिजनेस के बारे में भी उनसे बात की एंड लेटर ऑन हमने ये भी डिस्कस किया कि आप लोगों के लिए मैं आर्ट ऑफ मनी ये कम्युनिटी के लिए मैं क्या नया कर सकता हूँ और कैसे अभिषेक और नशर माइल्स की टीम जो है वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं. So hey guys, thank you so much for watching this episode till now और I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड नशर माइल्स को जाकर फॉलो भी कर सकते हैं बट डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन और हम और ऐसे एपिसोड्स आपके लिए लेकर आएंगे एंड देखते हैं अब डोंट कमेंट भी करो कि आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा. हम तीनों से मिले लोकेश से भी मिले श्रुति से भी मिले अभिषेक से भी मिले और आप किन्हें देखना चाहते हैं मुझे वो भी बताओ उनके पास जाएंगे उनसे पूछेंगे उनसे भी सारे क्वेश्चन पूछेंगे बस आपका सपोर्ट चाहिए एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर कम्युनिटी एज वेल वहाँ पर सब लोग बात करते हैं.